من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج یہ پروگرام خصوصاً سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے 11ویں کے موقع پر رکھا گیا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ایسے 11ویں کی محفل سجاتے ہیں اور مناتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں جو بھی 11ویں کا انتظام کرتا ہے، غوث پاک کے ان کے اوپر مدد ہوتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے المرء مع من احب الیک، جو جس سے محبت کرے گا دنیا میں، قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور یہ ثبوت ہے سبحان نگر والوں کے پاس کہ آج 11ویں کے محفل سجا کر، ان کی مجلس سجا کر اس بات کا ثبوت دے دیا کہ ہم 11ویں والے پیر سے محبت کرتے ہیں۔ اور یقیناً ہے کہ جو غوث پاک سے دنیا میں محبت کرے گا، قیامت کے دن وہ غوث پاک کی صحبت میں اٹھایا جائے گا۔ غوث پاک کی صحبت میں اس کو جنت میں بھیجا جائے گا، کیونکہ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا میدان محشر میں کہ جنتی ایک طرف ہو جاؤ اور دوزخی ایک طرف ہو جاؤ۔ جنتی ایک طرف ہو جائیں گے، دوزخی ایک طرف چلے جائیں گے۔ اللہ کا حکم ہوگا جنتی تم جنت میں چلو، جنتی تم جنت میں چلو۔ جب جنتی کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا تو جنتی آگے بڑھیں گے جنت کے طرف۔ اب یہ دوزخی والے صف کے لوگ یہ جنتی کو دیکھ کر کے رشک کریں گے، کاش ہمیں بھی دنیا میں کچھ کرا ہوتا تو آج ہم بھی اس کے صحبت میں ہوتے اور ان کے ساتھ جنت میں چلے جاتے۔ میرے دوستو، وہیں پر ایک اللہ والے ہوں گے اور ان دوزخی کی نگاہ جب اس اللہ والے کے اوپر پڑے گی تو وہ کہیں گے اے اللہ والے، ہم نے دنیا میں تمہاری صحبت کو اختیار کیا، تمہاری صحبت میں رہا، لیکن آج تو ہمیں چھوڑ کر اکیلے جنت میں جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا اور اپنے ولی سے فرمائے گا اے میرے بندے، نیک بندے، میرے ولی سن،
جو دنیا میں تمہاری صحبت میں رہا کرتا تھا آج اسے اکیلا مت چھوڑو بلکہ اپنے ساتھ لے کر اس کو بھی جنت میں لے چلے جاؤ۔ اور یاد رکھو اللہ فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، دنیا میں ہم کچھ کرتے ہیں تو لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہتا ہے، چھپا ہوا رہتا ہے، کسی کو معلوم نہیں کون چور ہے کون نمازی ہے، کس کو بھی معلوم نہیں، لیکن میدان محشر میں سب کھل کے آ جاتا سامنے۔ تو دنیا میں کیا کرا ہے نہیں کرا ہے سب بھی آ جاتا، پھر وہاں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مگر ایسے حالات میں، ایسے مشکل وقت میں ہم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہیں، آج ہمیں دنیا میں غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی اور غوث پاک کا صدقہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ غوث پاک کے مرید کے گناہوں کو بخش کر غوث پاک کی صحبت میں اسے جنت میں بھیج دے گا۔ تو میرے دوستو، یہ جو مجلس، یہ جو محفلیں سجاتے ہیں، یہ ضائع ہونے والے نہیں ہے بلکہ قیامت کے دن کام آنے والی چیز ہے۔ تو حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہے، انہیں کوئی غم نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپنا، جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 4 برس کی ہوئی کم و بیش، تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جیلان کے ایک مکتب میں پڑھنے گئے۔ ماں لے کے گئی پڑھانے کے واسطے استاد کے پاس۔ جب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے استاد کے سامنے دونوں زانو بچھا کر بیٹھ گئے تو غوث پاک کے استاد نے فرمایا بیٹا تم پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اعوذ باللہ سے بسم اللہ سے شروع کرتے ہوئے 18 جز قرآن کا بیٹھے بیٹھے سنا دیا بغیر دیکھ کے، 18 جز دیکھے بھی نہیں۔ استاد حیران ہو گئے، آخر وجہ کیا ہے بچے کہ پہلا مرتبہ مکتب آیا استاد کے سامنے اور میں بسم اللہ پڑھنے بولا، اعوذ باللہ پڑھنے بولا تو یہ پورے 18 جز بغیر دیکھ کے سنا دیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے استاد نے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ کہ تم تو پہلے مکتب آئے ہو، ابھی تمہارا تو استاد کے پاس ابھی بسم اللہ اعوذ باللہ بسم اللہ بھی شروعات نہیں ہوا صحیح سے، لیکن تم 18 جز کیسے پڑھ لیے؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے میرے استاد زمن سن، میری ماں 18 جز کے حافظ قرآن ہے، 18 جز کے حافظہ ہیں جو بغیر دیکھے روزانہ پڑھتے رہتی ہے۔ جب میری ماں مجھے گود میں لیتی ہے، اپنے دودھ پلاتی ہے تو میری ماں قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتی ہے۔ میں ماں کے گود میں رہ کر کے، ماں کے پیٹ میں رہ کر کے وہ 18 جز قرآن سن سن کر کے یاد کر لیا ہے، وہ مجھے بغیر دیکھے ہوئے یاد ہے۔ تو میرے دوستو، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن کا عالم یہ ہے تو جوانی کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے کہتے ہیں وہ زمانہ تھا جو مائیں قرآن کی تلاوت کرتی تھی، اپنے بچوں کو دین کے تعلیم سکھاتے تھے۔ وہ زمانہ تھا جو مائیں قرآن پڑھا کرتی تھی، اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی۔ لیکن آج کا ایسا زمانہ آ گیا کہ بچوں کو قرآن پڑھانے کی دور کی بات، کلمہ سکھانے کی دور کی بات، جب بچے کو گود میں لے کے بیٹھتی ہیں تو ڈائریکٹ سیریل کے سامنے بیٹھتی ہیں اور بچے کو قرآن کی تلاوت کر کے چپ کرنے کے بجائے سیریل دکھا کر کے بچوں کو چپ کیا کرتی ہیں۔ آج کا عالم ایسا ہے، تو بولو آج کا بچہ فرما بردار کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کا بچہ ماں باپ کے حکم ماننے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح تربیت نہیں دے رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو صحیح علم نہیں دے رہے ہیں،
हम अपने बच्चों को सही रास्ता नहीं बता रहे हैं, तो इसलिए हमारे बच्चे हमारे फरमा बरदार नहीं होता है, रास्ता से भटका हुआ नजर आता है। मेरे दोस्तों, सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया था। जब सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र कुछ बढ़ी तो अपने माँ से कहा कि मेरी माँ, मैं इल्म हासिल करने के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की माँ फरमाती हैं, बेटा मैं तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तू मेरे से दूर हो जा। और कौन माँ चाहती है कि अपने बेटे को अपने से दूर कर सके, दूर रखना गवारा करे। सरकार गौसे पाक की माँ कहती हैं, बेटा मैं तो तुमको दूर जाने के लिए गवारा नहीं करता, लेकिन बात यह है कि दीन की बात आ गई है, दीन के इल्म की बात आ गई है। मैं तो तुम्हारी जुदाई को बर्दाश्त कर सकती हूँ, दूर रहना गवारा कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें दीन के इल्म से दूर रखना गवारा नहीं कर सकती, मैं दूर नहीं रख सकती। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को माँ से इजाज़त मिल जाती है, और जब जाने का वक़्त आता है तो सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के हिस्से में जो माल आया था 40 दिनार थे। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के सदरी के नीचे बगल में वो 40 दिनार को सिल दिए। और जब जाने का वक़्त आया तो सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने माँ से इजाज़त लेने जाते हैं। ए मेरी माँ, मुझे जाने का वक़्त हो गया, अब इजाज़त दे दो। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु से उसकी माँ फरमाती हैं, बेटा तू जा तो रहे हो सही, लेकिन तेरी विरासत में, तेरे हक में 40 दिनार मिली है, जो मैं तेरे सदरी के बगल में सिल दी है। और ये याद रखो कि रास्ते में कितने भी मुश्किलात आ जाए, कहीं झूठ मत बोलना, कहीं भी झूठ नहीं बोलना। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु माँ से इजाज़त लेते हैं, सदरी पहनते हैं और निकल जाते हैं काफिले के साथ। जब वो काफिला चलते चलते हमदान पहुंचता है, हमदान से कुछ आगे बढ़ते हैं तो वहां डाको आकर के घेर लेता है, चोर आके घेर लेते चारों तरफ से पूरे काफिले को। और वो काफिले में जितने भी लोग थे सबके माल को छीन लिया, पैसे को, जो भी चीज साथ लाया था सब छीन लिया। सरकार गौसे पाक छोटे हैं, उम्र छोटी है, डाको आते हैं, चोर आता है, पूछता है बताओ तुम्हारे पास कुछ है या नहीं। तो सरकार गौसे पाक कहते हैं कि मेरे सदरी में बगल में 40 दिनार सिल के है। लेकिन डाको को यकीन नहीं आता है कि इतना छोटा बच्चा, इसके साथ 40 दिनार कहां से आता। एक के बाद दूसरा आके वही पूछता है, सरकार गौसे पाक वही जवाब देते हैं। फिर तीसरा आता है, फिर पूछता है, सरकार गौसे पाक वही जवाब देते हैं कि मेरे सदरी में बगल में 40 दिनार सिला हुआ है। किसी को यकीन नहीं आया कि इतने छोटे से बच्चे के पास ये 40 दिनार कहां से आएगा। जब ये बात वो डाकू के सरदार के पास पहुंचती है तो डाकू के सरदार कहते हैं कि वो बच्चे को बुला के मेरे पास लेके आओ। जब सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु उस डाकू के पास पहुंचते हैं तो डाकू का सरदार कहता है कि ये बताओ क्या तुम्हारे पास कुछ है। तो सरकार गौसे पाक कहते हैं हाँ, मेरे सदरी में 40 दिनार सिला हुआ है। डाकू कहते ठीक है लाओ सदरी। जब लेके जाते हैं तो देखते क्या है कि सही माने में 40 दिनार उसमें सिला हुआ है। वो डाकू के सरदार का दिल बदल जाता है और रोने लगता है। वो कहते हैं ए बच्चा ये बताओ कि काफिले में इतने लोग हैं जो अपने माल को छुपाने की कोशिश कर रहा था और कोई ऐसा भी ना हो कि वो छुपाने की कोशिश ना करे, लेकिन तुम ऐसा बताओ कि तुम्हारे पास कौन ऐसी बात है कि अपने माल को तो छुपाया नहीं, सही सही बता दिया। तो सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि डाकू के सरदार सुन, जब मैं अपने घर से निकला था मेरी माँ उम्मुल खैर फातिमा ने मेरे से वसीयत करी थी, बेटा रास्ते में कितने भी मुश्किलात आ जाएं कहीं झूठ मत बोलना। ए डाकू के सरदार, मैं अपने माँ की वसीयत को झुटला नहीं सकता है, बल्कि सच सच मैंने बता दिया है।
सरकार नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की जब ये बात सुनते हैं और डाकों के सरदार रोने लगता है और कहता है कि तू अपने माँ की वसीयत को झुटला नहीं सकता। हम तो अल्लाह से वादा करके आए, या अल्लाह हम दुनिया में जाकर तेरी इबादत करेंगे, लेकिन हम अल्लाह की इबादत करना छोड़कर चोरी करना शुरू कर दिया है। ए गौसे पाक, मैं अब चोरी करने से तौबा करता हूँ और मैं हमें अपने दामने फजल में छुपा लीजिए। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के कदम में गिर जाता है और सरकार गौसे पाक के हाथ में तायब होकर कलमा पढ़ के ईमान लेके आता है। और बताया जाता है कि डाकू का सरदार सिर्फ कलमा नहीं पढ़ा था, बल्कि वो डाकू के गिरोह में, वो जमात में जितने भी लोग था, सब कलमा पढ़ के ईमान लेकर के आया। यहां तक बताया जाता है कि सरकार गौसे पाक की जब निगाह उन डाकू पर पड़ती है तो उन लोगों की मुकद्दर बदल जाती है और वलियत का दर्जा मिल जाता है, वलायत का दर्जा मिल जाता है। इसलिए कहते हैं निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। जब अल्लाह के वलियों की निगाह है ना गुनहगारों पर पड़ जाते हैं ना, तो उसकी मुकद्दर ही बदल जाता है। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का बचपन का जमाना है और अपने नाना के घर परवरिश हो रहा उनका। सरकार गौसे पाक का नाना कौन? अब्दुल्ला सौमई हैं और हुजूर गौसे पाक का अब्बा अबू स्वाले। सरकार गौसे पाक का बचपन का ज़माना है, अपने नाना के घर इनके परवान चल रहा, परवरिश हो रही है। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु बचपन का ज़माना वो खेल रहे हैं खानका में, चारों तरफ इधर उधर फिरते रहते, खेलते रहते हैं। एक औरत अपने बच्चे को निकाब पोश हो करके, बच्चे को गोद में लेकर कपड़े ढांक करके सरकार अब्दुल्ला सौमई, सरकार गौसे पाक के नाना के पास खानका में आते हैं दुआ कराने के लिए। इसलिए दुआ कराने आते हैं कि कई जगह वो अपने बच्चों की दुआ इलाज कराया, लेकिन इलाज कराने के बाद अच्छा नहीं हुआ, तो सोचा कि चलो सरकार गौसे पाक के नाना अब्दुल्ला सौमई की बारगाह में जाएंगे, वहाँ दुआ कराएंगे, उनकी दुआ से मेरा बच्चा अच्छा हो जाएगा। जब आया तो आते आते क्या हुआ, बच्चा रास्ते में इंतकाल कर गया, बच्चा मर गया। बच्चा लेकर के ये औरत अब्दुल्ला सौमई की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, हुजूर मैं अपने बच्चे के लिए दुआ कराने के वास्ते आपकी बारगाह में आ रही थी, लेकिन रास्ते में मेरा बच्चा इंतकाल कर गया है। अब तो मेरा शौहर भी नहीं, मेरा शौहर भी इंतकाल कर गया, मेरे जिंदगी का सहारा मेरा बच्चा ही था। ए अब्दुल्ला सौमई, आप मेरे बच्चे को जिंदा कर दीजिए। अब्दुल्ला सौमई मुराकबा में जाते हैं, निगाहों को लौहे महफूज पर डालते हैं, तो उनका बच्चा जिंदा होने के लिए कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। अब्दुल्ला सौमई कहते हैं कि ए औरत, अब तुम्हारा बच्चा जिंदा नहीं होता, तू बच्चे को वापस लेके जा। अब वो औरत और भी सिसकियां लेकर के रोने लगी। बच्चे को लेकर के वो खानका के एक कोने में जाके बैठ के रोने लगी। उधर से सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु खेलते वो औरत के आती है। जब आए तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया, ए औरत तुम रो क्यों रही हो, रोने की वजह क्या है? तो सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु से वो औरत कहती हैं कि देखो मेरा बच्चा बीमार था, मैं कई जगह गई लेकिन मेरा बच्चा अच्छा नहीं हुआ। मैं सोचा कि आपके नाना के पास आऊं और आपके नाना दुआ कर दे तो मेरा बच्चा अच्छा हो जाएगा, लेकिन रास्ते में मेरा बच्चा मर गया और मैं अपने बच्चे की जिंदा होने की दरखास्त की तो आपके नाना ने कहा बच्चा जिंदा नहीं होगा, इसलिए मैं अपने बच्चे के लिए रो रही हूँ। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का बचपन का ज़माना है। सरकार गौसे पाक को जलाल आता है। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, ए औरत तुम्हारा बच्चा मरा नहीं है बल्कि जिंदा है, कपड़ा उठा के देख ले।
जब वो औरत कपड़े उठा के देखती है तो वह बच्चा हकीकत में मरा नहीं था बल्कि जिंदा नजर आ रहा, हलते हुए नजर आते हैं। अब जब सरकार गौसे पाक की यह करामत उसके नाना को मालूम हुआ तो वो गुस्से में आया, जलाल में आया कि मैं जो काम नहीं करा मेरा नवासा करके दिखाया। तो सरकार अब्दुल्ला सौमई हाथ में लकड़ी लेते हैं और वह लकड़ी लेके सरकार गौसे पाक के पीछे दौड़ने लगते हैं। नाना पीछे है, नवासा आगे है। चलते 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 कुछ दूर गए। जब कुछ दूर जाने के बाद एक कब्रिस्तान था, उस कब्रिस्तान के तरफ अपने मुड़े और वहां जब कब्रिस्तान में पहुंचे तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया कि एक कब्रिस्तान के दफीनों, देखो मेरे नाना मुझे लाठी लेके दौड़ा रहे हैं, मेरी मदद के लिए खड़े हो जाओ। इतना कहना था कि उस कब्रिस्तान में 300 मुर्दा दफन था। सब सरकार गौसे पाक के हम शक्ल बनकर खड़े हो गए। नारे तकबीर। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वह 300 मुर्दे के पीछे खड़े होके मुस्कुरा रहे हैं। सरकार गौसे पाक के नाना दूर में खड़े होके देखते, मेरे नवासे का उतना ताकत है कि कब्रिस्तान में मुर्दे को उठा के अपने शक्ल में खड़ा कर डाला। सरकार गौसे पाक से कहते हैं, बेटा मैं तुम्हारे कमाल को नहीं पहुंच सकता। वहां दुआ दे करके अब्दुल्ला सौमे फिर वापस चले गए। मेरे आका के सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बचपन का यह आलम है। बचपन में यह करामतें दिखा रहे